introduce our today's speaker and esteemed distinguished lecturer, who is Dr. Subhash Chandra. He is an alumni from the JNU, as Gopalji sir just introduced him as a JNU alumnus. And to give me a better or a brief introduction about his research accreditation. So, sir is an excellent academician and researcher. He has completed his PhD from JNU. He has done his postdoc from one of very well-known university in USA, Cornell University, and his research area or his major interest in the research, it comprises of the computational biology or the bioinformatics. And currently he is working as an assistant professor in Shobhan Singh Jina University, which is a state government university. As far as I can see, that this is a recently open university, state university from the Almora, Uttarakhand, the Devbhoomi. Again, a very good place actually. So this is a state university where sir has joined as an assistant professor, and his expertise is in computational biology and bioinformatics. He has published more than 80 research articles. His H index is more than 15, I index is more than 15. So this itself tells you or gives you an idea that what is the caliber of the researcher or academician who has joined us today as an expert for this today's talk, which is on molecular docking for the drug discovery. So I hope that this structure will be beneficial to all of us, including participants and also to me, because no doubt I am also interested in a bit of bioinformatics, gaining the knowledge from these science dialogue series lectures. So one thing I would like to mention here, that this initiative for the science lecture, the science dialogue series, it is a initiative from Gopalji sir and to me, and I hope to the other participant also. This has been proven one of the best series that we have joined, and we can get the insight from the excellent scientists, researchers, academicians, few of the researchers who are currently pursuing their PhD from ISC. They might have joined us in few sessions back. So this complete series is taking a lot of sir is actually taking a lot of efforts to make us more literate, more having more insights about the current age science which is going on. And this one, which is molecular docking itself, is a science which is in phenomenal phase right now. So I request Subhash sir, not getting too much delayed, and I request him to start the session. So sir, this virtual platform is yours, and our participants now in your hand, and I request you to start the session. Thank you, madam, to introduce me very well. Thank you very much. Thank you, sir. So I welcome all the participants. It is very in short time I prepared my lecture, so maybe there's many mistakes. But my aim is that to introduce about the molecular dockings, how it can be beneficial in our research. I think some Hindi or English mix will be good. Okay. Sir, that would be the best. यस ठीक 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 ठीक। तो जैसा कि मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और अगर आपको अब बताना चाहता हूं कि मैं जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, ये न्यूली एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इससे पहले मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और मैं भी आप लोगों की तरह ही ज्यादातर मुझे लगता है कि सब लोग जेडबीसी से लोगों ने बीएससी करी है। तो मैं भी जेडबीसी से मैंने बीएससी करी है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करी है, आगरा यूनिवर्सिटी से करी है, एंड पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से करी है। तो मेरा जो है यहाँ पे मेन मकसद जो लेक्चर को देने का ये नहीं है कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर डॉकिंग की थियोरेटिकल थ्योरी बतानी, ये आप सब लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देयर आर प्लेंटी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है और बहुत सारे पेपर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरे लेक्चर का मकसद ये है कि जो मैंने व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान सीखा है, अगर उससे मैं कुछ आप लोगों को दे पाऊँ
तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोग मॉलिक्यूलर डॉकिंग में कुछ कर पाए। अगर एमएससी लेवल पे हैं प्रोजेक्ट कर पाए, मास्टर लेवल पे प्रोजेक्ट कर पाए, हम फार्मा के लोग हैं उनको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। पीएचडी वाल जो पीएचडी स्टूडेंट हमारे लाइफ साइंस में ज्यादातर वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि बायोमेट्रिक्स तो बहुत अलग है, हम कहाँ इसके चक्कर में पड़े। लेकिन ये टेक्निक्स जो है वो लाइफ साइंस के भी लोग अपने डे टू एक्सपेरिमेंट में अपना सकते हैं और उससे अच्छे पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं स्टार्ट करता हूं और मैं चाहूंगा कि कोई भी पार्टिसिपेंट अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो कभी भी मेरे को इंटरप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, this is interactive session, so anytime people can unmute and ask question. Yes. That is more beneficial. So let me start my presentation. स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस सर, बट अभी पावर पॉइंट मोड पे नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पावर पॉइंट मोड पे कर रहा हूँ उसको। कभी कभी दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। सो टाइटल इज द मॉलिक्यूलर डॉकिंग फॉर ड्रग डिस्कवरी। हालांकि मॉलिक्यूलर डॉकिंग केवल ड्रग डिस्कवरी के लिए नहीं यूज होता है, बहुत जगह हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। मैकेनिज्म मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी वन अप्रोच है, वन एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ऐसा कोई ना सोचे कि दिस इज ओनली ड्रग डिस्कवरी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन सबको पता चल ही गया, ठीक है? थोड़ा बहुत ऑलरेडी हमने मैडम पूनम ने बता रखा है मेरे बारे में, तो इसको ज्यादा एलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अच्छा, हम किस फील्ड में काम करते हैं, मेरी लैब में जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं वो किस फील्ड में काम करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग कैंसर फील्ड में काम करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम फील्ड में काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं, लिस्मानियासिस में काम करते हैं, मलेरिया में, अल्जाइमर में, एंटी एजिंग। तो कुछ और भी हमारे फील्ड्स हैं, तो लेकिन मेन फील्ड्स हमारे रिसर्च के यही है। तो इन फील्ड में हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। जिनको भी इंटरेस्ट हो मेरे रिसर्च गेट में या गूगल स्कॉलर में जाके या पबकेम में देख सकते हैं, ठीक है? कभी कोई जरूरत हो तो मेरे से आप लोग क्या नाम है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी रिसर्च में हम लोग क्या स्टडी, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो फ्यू ऑफ दिस टेक्निक्स आई एम डिस्क्राइबिंग हियर, ठीक है? हालांकि बहुत और टेक्निक्स हम यूज करते हैं। अगर मौका मिलेगा तो मैं फिर अगेन कभी लेक्चर दूंगा दूसरे अपनी टेक्निक्स पे, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग्स हम यूज करते हैं, ठीक है? तो देखिए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग यूज करने के लिए जो हार्डवेयर क्या जरूरत होती है वो हमें जानते हैं, ठीक है? हम लैपटॉप में कर सकते हैं, डेस्कटॉप में कर सकते हैं, कुछ सर्वर्स हैं, सर्वर पे हम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग्स। एंड अगर हमारे पास वर्क स्टेशन है जीपीयू वाला तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम आराम से लैपटॉप पे कर सकते हैं। तो किसी को ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि अगर मेरे पास लैपटॉप है तो मैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग नहीं कर सकता, तो मैं कर सकते हैं डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। अगर ये चीज भी अगर नहीं अवेलेबल तो सर्वर्स अवेलेबल हैं, वहां पे कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है? वर्चुअल स्क्रीन करते हैं, ठीक है? तो वर्चुअल स्क्रीन एक तरह से मॉलिक्यूलर डॉकिंग को ही बोलते हैं, हालांकि और भी इसकी डेफिनेशंस है। इसमें हम बहुत एक ही साथ लाखों मॉलिक्यूल की स्क्रीन करते हैं थ्रू द मॉलिक्यूलर डॉकिंग प्रोसेस, ठीक है? तो ये भी हम लैपटॉप पे कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, सर्वर पे कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डेस्कटॉप है जिसमें जीपीयू प्रोसेसिंग है, हम उस पर भी कर सकते हैं। सर, जीपीयू की क्यों मैं बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, ठीक है? जिसको आप लोग आम बोल चाल में गेमिंग कहते हैं, गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग डेस्कटॉप आप लोग बोलते होंगे, ठीक है? इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जीपीयू प्रोसेसिंग में काम करने पे क्या होता है कि लैपटॉप में जो काम हमारा 10 घंटे में होता है वो जीपीयू वाले में हमारा 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाता है, ठीक है? तो इससे हमारी रिसर्च बहुत स्पीड अप हो जाती है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स सिमुलेशन बहुत रूटीनली करते हैं। इट कैन आल्सो बी परफॉर्म ऑन द लैपटॉप, डेस्कटॉप
सर्वर, ठीक है। बट बेस्ट क्या है, आपके पास जीपीयू का लैपटॉप या जीपीयू का डेस्कटॉप होना चाहिए, और डेस्कटॉप ही ज्यादा बेटर है इसके लिए मॉलिक्यूलर सिमुलेशन। तो मॉलिक्यूलर सिमुलेशन हम लोग ग्रोमेक्स सॉफ्टवेयर है जो वेल नोन है, सभी लोग जानते हैं, उस पर हम लोग करते हैं इसको। नेटवर्क फार्माकोलॉजी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये रिसेंट काफी ये इमर्जिंग एरिया है आपका नेटवर्क फार्माकोलॉजी, ठीक है, जो कि लैपटॉप पे कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, बट इसके लिए ऑनलाइन इंटरनेट चाहिए, सर्वर के थ्रू में इसमें रिजल्ट्स आता है। तो नेटवर्क फार्माकोलॉजी आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। देन हम क्वांटम केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसकी क्वांटम प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करते हैं। इट कैन बी आल्सो कंडक्टेड ऑन लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर, और बेस्ट ये है कि आप जीपीयू है तो उस पर आप करेंगे तो बेटर है। और क्योंकि क्या होता है कि डेटा जो हम लोग काम करते हैं इसमें कभी कभी डेटा इतना ज्यादा होता है कि उस पर सीपीयू की प्रोसेसिंग बड़ी स्लो हो जाती है, सीपीयू बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर जीपीयू हो तो वो बेटर है। इसके अलावा डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग पे, डीप लर्निंग पे और बहुत सारे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग पे हम लोग काम करते हैं। सर यस प्लीज। सर ये आप ना ये जो आ रहा है meetgoogle.com शेयरिंग योर स्क्रीन, हाँ, उसको हाइड कर दीजिए लास्ट तो, में। यस, हाइड कर दीजिए। यस यस, ठीक, आई थिंक ठीक, ओके, राइट, ठीक ठीक, यस। तो जो हम काम करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर डॉकिंग समझिए, कंप्यूटर ड्रग डिस्कवरी आप समझिए, ठीक है। इसमें हमारी स्किल क्या होनी चाहिए, बेसिक स्किल क्या होनी चाहिए इस काम को करने के लिए? क्योंकि जस्ट ये सोच लेना कि हम चलो मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं, इससे नहीं हो जाता, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कुछ हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, सम सीएमडी कमांड के बारे में पता होना चाहिए जो कि विंडो में यूज होती है, सेल कमांड के बारे में पता होना चाहिए जो कि लाइनेक्स में यूज होती हैं, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं बायोमेट्रिक्स में तो ये बड़ा डे रूटीन होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल है। तो इसलिए क्या नाम है, आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आनी चाहिए कि ठीक है, अगर क्रैश हो गया, कुछ हो गया तो आप कर सके। हालांकि आप बाहर बाजार में भी करा सकते हैं, लेकिन हर बार आप 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आना चाहिए आपको, डिफरेंट टाइप के कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो और लाइनिक्स के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो लाइनिक्स आना चाहिए। तो ज्यादातर लोग तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं चलाना, एक विंडो जानते हैं और मोबाइल में एंड्रॉइड है। तो जिसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें बायोमेट्रिक्स में काम करना है तो थोड़ा सा वो लाइनेक्स सिस्टम उबंटू भी सीख ले, जो कि काफी फेमस है, एकेडमिक में बहुत ज्यादा वो यूज होता है, ठीक है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में काम करते हैं, तो उसके अगर आपने ठीक है सॉफ्टवेयर में यूज किया, आपके पास कुछ रिजल्ट आ गए, तो हाउ टू आप उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे जब आप पेपर लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट इंटर लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, मतलब, ठीक है। वो एक इसका है नहीं, क्योंकि लेटर ऑन ये आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट जो होते हैं इन्हीं बेस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट के बेस पे ही एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा नॉलेज है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्या नाम है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग कोई जरूर, डॉकिंग के लिए कोई जरूरी नहीं पाइथन प्रोग्रामिंग, बट जो लोग इसमें अच्छा काम करना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीख लें। आजकल तो ये नॉर्मल है, स्कूलों में सिखाया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग कुछ एरिया देखते हैं, क्या एप्लीकेशन है, ये मैंने इंटरनेट से ही निकाला हुआ है, ठीक है, जस्ट टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ड्रग रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू, कि जो अवेलेबल ड्रग्स हैं हमारे, वो किसी न किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए यूज होते हैं। अगर हम चाहें तो उनको दूसरे बीमारी में भी टेस्ट कर सकते हैं, तो रिपर्पेजिंग या रिपोजिशनिंग बोलते हैं। तो ये आजकल बहुत ये हॉट रिसर्च है जिसपे लोग बहुत काम करते हैं। उसकी शुरुआत तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग से करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिकल वैलिडेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो है अब तक आ चुके हैं जिसमें कि एक ही ड्रग जो है कई बीमारी में यूज होता है। पॉलीफार्माकोलॉजी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स को ट्राई करते हैं, आइडेंटिफाई करने की करते, जो बहुत सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है, ठीक है।
प्रिडिक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू हम ये भी एडमिट होता है और प्रिडिक्शन होता है उसके थ्रू, और जिस टारगेट के थ्रू वो आपका टॉक्सिक रिएक्शन दिखा सकता है उसमें डॉकिंग करके वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट फिशिंग एंड प्रोफाइलिंग, टारगेट फिशिंग मतलब कि एक ड्रग जो है कौन कौन से टारगेट को हिट कर सकता है। एक तो होता है कि हमारे कुछ वेल नोन होते हैं और कुछ अननोन होते हैं, ठीक है। तो अननोन कौन से टारगेट है उसको कैसे इसको हम जान सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू हम वो कर सकते हैं। रिवर्स डॉकिंग एरिया है इसके लिए आपका, ठीक है। वर्चुअल स्क्रीनिंग, लाखों मॉलिक्यूल्स करोड़ों मॉलिक्यूल्स की हम वर्चुअल स्क्रीनिंग इकट्ठे कर सकते हैं, एंड उसके बाद उसको जब स्क्रीन करने के बाद में लाखों मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उसको हम फिर आगे इन विट्रो लैबोरेटरीज में जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली ये आपका टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है और ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को स्पीड अप किया। आप सबने पढ़ा होगा कि एक ड्रग को पूरी तरह से मार्केट में आने में 15 से 20 साल लग जाता है और काफी पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटेशन टेक्निक है ये हमारी टाइम सेविंग करती है, ठीक है, एंड कॉस्ट भी सेविंग करती है, ठीक है। लिगेंड टारगेट बाइंडिंग रेशनलाइजेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लिगेंड के कुछ मॉडिफिकेशन कर करके देखते हैं कि वो बेटर कैसे टारगेट को बाइंड करता है। तो मैं टारगेट की बार बार बात कर रहा हूँ। तो टारगेट मीन्स क्या है कि प्रोटीन्स, मेरा मतलब एक प्रोटीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी डिसीज को होने में, ठीक है। चाहे वो लाइक कैंसर हो हमारे अंदर, ठीक है, बहुत सारे टारगेट होते हैं कैंसर के, चाहे कोई और बीमारी हो, HIV, माइक्रोबैक्टीरियम टोटस, में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे अंदर डिसीज पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये जो पैथोजेंस होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर लेट सपोज एक बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो मैकेनिज्म क्या होती है कि एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर, अगर फंगल डिसीज उसके अंदर जाके वो किसी उसके मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल सेल वॉल सिंथेसिस है या डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस का एंजाइम्स है, उसको इंट्रैक्शन करके वो प्रोसेस को रोक देते हैं और एज ए रिजल्ट जो भी पैथोजन है उसका एप्लीकेशन रुक जाता है, अल्टीमेट वो मर जाता है, ठीक है। तो टारगेट का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ठीक है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग आप लोग समझ चुके होंगे कि इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स like which is being called receptors या macromolecules like enzymes, proteins, DNA, RNA, anything natural, and between the inorganic molecules. तो हम बड़े मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल बीच में इंटरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बट हम शुरुआत में इस चीज को ऐसा ही मान सकते हैं। दिस इज जस्ट ओनली रिप्रेजेंटेशंस। प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग देख रहे हैं, प्रोटीन्स और लिगेंड कैसे आपस में बाइंड करते हैं और मेक द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो मेजरली टाइप ऑफ डॉकिंग अगर हम बात करते हैं, दो टाइप की होती है, एक तो प्रोटीन डॉकिंग्स होती है और दूसरी प्रोटीन लिगेंड्स। तो प्रोटीन डॉकिंग्स क्या होती है कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपको पता है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा पूरे सेलुलर जो है मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चलती है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें, बहुत सारे मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं जो कि इंटरेक्शन बना के रखते हैं, तभी जाके आगे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू प्रोटीन इंटरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोटीन इंटरेक्शन को रोकने के लिए ड्रग भी डिजाइन कर सकते हैं प्रोटीन डॉकिंग के थ्रू, ठीक है। तो बहुत मॉलिक्यूल्स आर रिजिड कंडीशंस में इसमें होते हैं, हालांकि फ्लेक्सिबल हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनिशियली हम दोनों मॉलिक्यूल रिजिड रखते हैं और दे प्रोड्यूस नो चेंजेस इन कन्फर्मेशन, ठीक है ना, कोई कन्फर्मेशन नहीं होता जब इंटरेक्शन करते हैं, सीधे सीधे इंटरेक्शन होता है। एटलीस्ट मैकेनिज्म लाइक एक लॉक एंड के मॉडल जो आप लोग एंजाइम में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें जो प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग की बात करें, जिसमें हम आगे इसी पे हम फोकस करेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें लिगेंड को यूजुअली हम पहले फ्लेक्सिबल रखते हैं बट रिसेप्टर को रिजिड रखते हैं, जो ठीक है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। और इंटरेक्शन प्रोड्यूस कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द लिगेंड, और जैसे क्या नाम है इसमें इंटरेक्शन जब होता है रिसेप्टर का या मैक्रोमोलेक्युलर विद द लिगेंड का मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ड्रग
इसको हम लिगेंड कह रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन करते हैं तो लिगेंड में क्या नाम है, चेंज इसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। सर प्रोटीन लिगेंड आप वापस एक्सप्लेन कीजिए। हाँ प्लीज, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? प्रोटीन लिगेंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग आप वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। एक मिनट, आप पीछे स्लाइड पे जाना चाह रहे हैं या मेरे से एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं? नहीं, एक्सप्लेनेशन सर, शॉर्ट में भी एक्सप्लेनेशन देने में चलेगा, शॉर्ट में। अच्छा, ठीक 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 है। प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग, ठीक है। तो प्रोटीन्स का मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक टारगेट, मॉलिक्यूलर टारगेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लिगेंड यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसको हम मानते हैं कि ड्रग है, या ड्रग हो सकता है क्योंकि हम इसके ड्रग डिस्कवरी यूज करते हैं, या इटसेल्फ वैलिडेटेड ड्रग भी हो सकता है, ठीक है। तो सेल के अंदर जब भी कोई ड्रग जाता है, ठीक है, वो किसी ना किसी टारगेट से इंटरेक्शन करता है जिसकी वजह से उसके थेरेपेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे इन केस आप मान लीजिए कि हमको इन्फेक्शन हो गया, साल्मोनेला टाइफी से हो गया, या जो एस्केरिया कोलाई जो आपका वायरल फॉर्म है उससे हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जब लेते हैं वो हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है, नंबर एक, ठीक है। और जहां पर क्या नाम है बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर भी पहुंचेगा, जाएगा। और जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो अब बैक्टीरिया को किल करना है, क्या प्रोसेस हो सकती है किल करने की, बैक्टीरिया रेप्लिकेट ही ना करे, ठीक है। तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट ना करे तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज है, तो वो ड्रग आपका डीएनए पॉलीमरेज को से इंटरेक्शन करेगी, जिससे आगे डीएनए पॉलीमरेज जो है नेचुरली जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया का, ठीक है। तो आपका रेप्लिकेशन रुक गया। तो ये तो एक मैकेनिज्म है, और बहुत सारी मैकेनिज्म है, क्या नाम है, क्योंकि ड्रग बहुत सारी होती है, कैनामाइसिन, टेरामाइसिन, एम्प्लिसिन, डिफरेंट ड्रग जो होती है अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ ड्रग जो है आपके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे जाके, ठीक है, रेप्लिकेशन को नहीं रोकेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे जाके, तो उससे भी आपका बैक्टीरिया, ठीक है, जिस कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन में रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी सेलुलर प्रोसेस है उसको किल कर देती है, जो कि आपकी इम्यूनोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। एनी एल्स और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, नाउ क्लियर। वेलकम वेलकम। तो हाँ राइट, हाँ तो हम अभी आगे जो हम ज्यादा फोकस करेंगे प्रोटीन लिगेंड पे ही करेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग इसी में काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइप देखते हैं, 3 टाइप इसके अंदर होते हैं। तो पहले केसेस में क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल है, रिसेप्टर है, ठीक है, ये इसमें ये क्या नाम है, और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो ये आपका रिजिड डॉकिंग से बोलते हैं, क्योंकि दोनों चेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप को, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दोनों को बस एक देयर फिट, लॉक एंड की तरह वहां पे फिट हो जा रहे हैं, क्या नाम है। तो रिजिड, बोथ रिसेप्टर एंड लिगेंड इसमें रिजिड होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की डॉकिंग ये होती है आपकी। सेकेंड टाइप की डॉकिंग जिसमें कि आपकी फ्लेक्सिबल रिजिड डॉकिंग, जिसमें लिगेंड इज फ्लेक्सिबल एंड रिसेप्टर इज रिजिड, रिसेप्टर इज रिजिड, ठीक है। इस पे इसका ही मैं आपको आगे अगर पॉसिबल हुआ तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे रिसेप्टर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बट जब लिगेंड जा रहा तो उसके अंदर चेंजेस आ जा रहे हैं, क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि दोनों ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, बोथ रिसेप्टर एंड रिजिड दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं। जब वो आप एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं, दोनों का अंदर चेंज आता है, दोनों फिट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर की लॉक थ्योरी है, इंड्यूस फिट थ्योरी है, दोनों ही को सही माना गया कि दोनों ही काम करती हैं। कहीं पे इंड्यूस फिट करती है, कहीं पर लॉक एंड की थ्योरी काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 चीजों को बताने का मतलब यही है कि ये 3 तरीके से डॉकिंग्स जो आपकी कंप्यूटर में होती है, और तीनों को करने में डिफरेंस ये होता है कि कंप्यूटेशनल पावर अलग अलग लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएशन किए रहते हैं। तो यूजुअली एक जो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, डॉकिंग करते हैं हम, तो नॉर्मल प्रोसेस में हम देखिए हमारे पास जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेथड मटेरियल्स होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। आपके पास में कंप्यूटर है,
आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर है जो बताऊंगा हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, डॉकिंग करने के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हो गए, कंप्यूटर्स हो गया, उसके बाद आपके पास में प्रोटीन या रिसेप्टर होना चाहिए ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है, जिसका बेस बनाकर आप ड्रग डिस्कवरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन रिसेप्टर हमें कहां से मिलेगा, क्वेश्चन ये है हमें कहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन रिसेप्टर हमें प्रोटीन डाटा बैंक पीडीबी, ठीक है, वहां की वेबसाइट से मिलता है या अल्फा फोल्ड की वेबसाइट से मिलता है। ये पीडीबी क्या है, प्रोटीन डेटा बैंक क्या है, तो आप लोग बायोलॉजिस्ट में पढ़ते होंगे या नॉर्मल भी पढ़ते होंगे, तो बायोलॉजिकल डेटाबेस होते हैं, ठीक है, जहां पर एक्सपेरिमेंटली जितने भी डेटा होते हैं बायोलॉजी के वो वहां पर रखे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपको जीन का स्ट्रक्चर चाहिए या जीन की सीक्वेंस चाहिए तो आप जीन डेटाबेस में, जीनोम डेटाबेस में जाएंगे। अगर आपका प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए तो प्रोटीन डेटाबेस में जाएंगे। अगर आपको क्या नाम है प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो आप प्रोटीन डेटा बैंक RCSB भी उसको बोलते हैं, ठीक है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आप वहां जाएंगे, ठीक है। वहां से आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा बाद में प्रैक्टिकल भी दिखाने की, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे उसको, ठीक है, और उस पर कुछ उसका ट्रीटमेंट्स करते हैं, अनवांटेड चीजों को रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लिगेंड भी चाहिए, रिसेप्टर आप लोग देख रहे होंगे, प्रोटीन रिसेप्टर ये हमें मिल गया, ठीक है। फिर हमें लिगेंड भी चाहिए जिससे हमें इसकी डॉकिंग करानी है। तो अब लिगेंड क्या हो सकता है, सब क्वेश्चन ये होता है कि लिगेंड क्या है। तो लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि ड्रग है या ड्रग हो सकता है, या हम जिसे हमें लगता है कि जैसे कि ये कुछ नोबल टाइप का ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पर्टिकुलर डिसीज लाइक अगेंस्ट कैंसर क्या नाम है ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, या अगेंस्ट क्या नाम है HIV वायरस बहुत अच्छा कर सकता है, या कोरोना वायरस अच्छा कर सकता है, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मिलेंगे कहाँ। तो इनके लिए भी डेटाबेस है, लाइक ड्रग बैंक है। आप ड्रग बैंक की अगर वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें लगभग 10,000 मॉलिक्यूल्स आप लोग को मिलेंगे, ठीक है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में एज ए ड्रग यूज होते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि इंक्लूडिंग इंडिया, USA एंड यूरोप, ठीक है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो अमेरिका में है वहां पर लगभग 2000 के आसपास अप्रूव्ड ड्रग है जो कि मार्केट में मिलेंगे, लेकिन यूरोप के अंदर अगर जाएंगे तो वहां पे अलग अलग कंट्री में और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, इंक्लूडिंग द अमेरिकन ड्रग्स या इंडियन ड्रग्स, ठीक है। और तो ये ड्रग्स जो है हमें मिलेंगे कहाँ, मतलब मीन्स मिलने का मतलब क्या है, इनका स्ट्रक्चर चाहिए, 3D स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। ये ड्रग बैंक से, जिंक डेटाबेस से मिल सकते हैं, पबकेम से मिल सकते हैं, केमस्पाइडर से मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स डेटाबेसेस हैं जहां से आपका स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, ठीक है। वहां से यू कैन डाउनलोड कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ठीक है। तो यूजली रिसेप्टर डाउनलोड होने के बाद में उसको हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब रिसेप्टर हमारे काम का है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ऑटोडॉक टूल्स यूज कर सकते हैं, बैलून्स है, ओपन बबल सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर ये सारी ऑटोमेटिक पावर होती है उसको रिसेप्टर को प्रिपेयर करने की, ठीक है। इसी तरह से जो लिगेंड्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिगेंड को डाउनलोड किया, अगर वो 2D फॉर्मेट में उसको आप 3D फॉर्मेट में बदलेंगे तो उसके लिए एक ओपन वर्ल्ड सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। या उसका फॉर्मेट ऐसा है जिसकी आपके जो भी चेंज करना है, अगर SDF फॉर्मेट, आप मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में उनका 3D स्ट्रक्चर होता है, लाइक MOL2, SDF, PDB, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है जिनको नहीं पता है, ठीक है। देन उसके बाद में जब डॉकिंग की प्रोसेस जो करते हैं तो उसमें डॉकिंग जो करेंगे एक पर्टिकुलर साइट पे करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी डॉकिंग कर देंगे। जैसे कि एंजाइम की बात करते हैं तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में बाइंड करता है जिसे एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है, तभी जाके वो सबस्ट्रेट आगे प्रोडक्ट में बदलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम जब डॉकिंग कराते हैं तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि भैया इस पॉइंट पे आपको बाइंडिंग करानी है और जगह कहीं नहीं बाइंडिंग करानी। तो अब वो साइट कैसे ढूंढते हैं, तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक कास्टपी है, SFC बायो है, कोच है, डीप साइट है, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, जिससे हम पता करते हैं कि हाँ ये एक्टिव साइट प्रॉबल हो सकती है। या तो हमने जो रिसेप्टर हमने PDB से लिया है, अगर उसके अंदर ऑलरेडी
पहले से कोई इनहिबिटर बाइंड से कोई ड्रग बाइंड है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हम उस मॉलिक्यूल की साइट को, उस लिगेंड के साइट को ही लोकेट कर लेते हैं और वहीं पे हम बाइंडिंग कराते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग्स कराने के लिए, नहीं डॉकिंग्स कराने के लिए जो है बहुत सारे जो टूल्स यानी सॉफ्टवेयर है, लाइक ऑटोडॉक है, ऑटोडॉक बीना है, स्विसडॉक है, फ्लेक्स, गोल्ड, जेट डॉक, बहुत सारे हैं। ये तो फ्यू नेम्स हैं, क्या नाम है। ठीक है, और दूसरी जो एक डिफरेंट टाइप की डॉकिंग होती है, इनवर्स डॉकिंग करते हैं, बोलते हैं, रिवर्स डॉकिंग बोलते हैं। उसमें आई टारगेट, एसिड है, टारफिश है। ठीक है, ये है, तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी डॉकिंग होने के बाद में उसको हम विजुलाइजेशन करेंगे, देखेंगे कि क्या समझ में आ रहा है, डॉकिंग हुई नहीं हुई, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। तो हम पाइमोल, रासमोल, बीएमडी, काइमेरा, डिस्कवरी स्टूडियो, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, विजुलाइजेशन करते हैं। पर्टिकुलरली हमारे लैब में हम लोग पाइमोल ज्यादा यूज करते हैं, समटाइम्स काइमेरा या बीएमडी भी यूज करते हैं, डिस्कवरी स्टूडियो विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, I think I skip this, not necessary here. These are some few list of software you can find out on internet. ठीक है, तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब आगे थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने जा रहा। ठीक है, तो डॉकिंग में जो आप लोग आज डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, दैट इज use in that practicals I will be use Autodoc Bina software. ठीक है, and with the help of Instadoc. ठीक है, Autodoc Bina का सबने नाम प्रॉब्ली सुना होगा जो डॉकिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और फ्री होने के बावजूद भी इसके रिजल्ट जो है बहुत इतने अच्छे आते हैं कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की जैसे होते हैं और कभी भी पब्लिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बट ओरिजिनली ऑटोडॉक बीना जो है इसको यूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कमांड लाइन के थ्रू ये यूज होता है। तो ऑटोडॉक बीना को इजी बनाने के लिए मे बी मोर देन हंड्रेड्स टूल्स डेवलप करे गए हैं जिसके अंदर ऑटोडॉक बीना को इंटीग्रेट करके डॉकिंग्स होती है। ठीक है, तो जो हम अभी यूज करते हैं, हालांकि मैं आपको बताऊं हम लोग लगभग मोर देन 10 टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, डॉकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब सभी को आप बताना पॉसिबल नहीं है, जैसे पायरेक्स हो गया आपका, ठीक है, हाइजेम डॉक हो गया, ठीक है, इजी डॉकिंग्स हो गया। ठीक है, अभी मैं आप लोग को जो सिखाऊंगा वो इंस्टा डॉक है। ये सॉफ्टवेयर जो हमारे इंडिया के वालों ने ही डेवलप कर रखा और अच्छा है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया, तो ये काफी अच्छा हमने देख रखा है और इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है कमांड लाइन के थ्रू यूज करने में, वो इसमें आपको बाईपास हो जाती है। तो इंस्टाडॉक सॉफ्टवेयर है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाडॉक लिखे, इंटरनेट में लिखेंगे तो उसका आपका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। यू कैन इजीली स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसका पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक का स्ट्रक्चर चाहिए हमें, अभी देखते हैं कैसे मिलेगा। उसके बाद में हमें अगर रिसेप्टर के अंदर कोई लिगेंड बाइंड है तो उसका XYZ कोऑर्डिनेट निकालेंगे जहां पर हम अपने मॉलिक्यूल्स की डॉकिंग कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने कुछ लिगेंड कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, पबकेम डेटाबेस, जिंक डेटाबेस, जो अभी थोड़े हम लोग ऊपर बात करी थी। ठीक है, अगर SDF फॉर्मेट में तो फॉर्मेट उसका चेंज करेंगे। यूजुअली PDB फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं डॉकिंग के लिए, प्रोटीन डेटा बैंक। PDB मतलब प्रोटीन डेटा बैंक। ओके, तो ये देखिए प्रोटीन डेटा बैंक की जो बेसिक साइट्स है, ठीक है, ये है जहां से हमें प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। तो कोई भी हम प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर डॉकिंग्स का, तो ये साइट जो है बड़ी हेल्पफुल है और यूजुअली यही साइट ही यूज होती है। ठीक है, इसको www.rcsb.org बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही अगर आप लोग इंटरनेट में खोलेंगे आपको मिलेगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है सर्च बाय PDB ID, ऑथर्स नेम, मैक्रोमोलेक्यूल्स, कुछ भी नाम लिख के सीक्वेंस भी डाल के आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को एज एग्जांपल्स लिया है। ठीक है, अगर आप PDB इसमें सर्च साइट में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके लेके आएगा। ठीक है, तो
आप देखेंगे, इसको हिट करते हैं लिख के, तो ये आपका आ जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर HIV, ठीक है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स विद थायोकार्बोनेट नॉन न्यूक्लियोलाइड न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स, ठीक है। ये ऐसा निकल गया था। तो ये जो आपका प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन HIV के अगेंस्ट, HIV का है बट HIV के अगेंस्ट ड्रग टारगेट है, ठीक है, हमारा रिसेप्टर है, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि HIV के अगेंस्ट कुछ पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करें और उसका रेप्लिकेशन ना हो, ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ से चाहते हैं। और रिवर्स HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? आप लिखिए, नेट पे लिखेंगे, पब्लिकेशंस में बहुत से आपको दिखाया हुआ कि ये एक ड्रग टारगेट्स हैं टू डेवलप द एंटी HIV मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2VG7 लिखा हुआ, ये इस प्रोटीन की ID है। ID मतलब जैसे हमारा मोबाइल एक नंबर होता है, हमारा नाम होता है, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई रिसर्चर क्या नाम है पहली बार किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डेवलप करके इसमें सबमिट करते हैं तो उनको एक आईडी मिलता है, 4 नंबर का ही होता है, ठीक है, 4 डिजिट का ही, 4 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। आप इसको सीधे गूगल में भी लिख देंगे 4VGV, तो ये लिंक उठा के लेके आएगा, इसका यहीं पे सीधे लेके आ जाएगा, ठीक है। उसके बगल में देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी फाइल्स को हम डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है। तो जिसको पीडीबी फॉर्मेट में करता है, अगर मैं ऑनलाइन करने की कोशिश करता हूँ तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ। शायद आप लोग को ऑनलाइन दिख रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ। यस सर। यस, तो मैंने जस्ट देखिए 2VG7 लिखा, ठीक है। इसमें हिट करता हूँ तो ये नीचे आप यहाँ देखें प्रोटीन डेटा बैंक्स, ठीक है। यहाँ पर ये लिंक जो है उसी का लेके आ गया पे, तो ये बेसिकली जापान वालों का है, ठीक है। ये जापान वालों की साइट से लेके आ गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जापान की साइट बना रखी है। और RCSB का नीचे देखिए लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स आया है क्या है, देखिए लिखा हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स विद थायोकार्बोनेट नॉन न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ये हमें इतना अच्छा मिल गया क्योंकि इसके साथ में इनहिबिटर भी बाइंड है। तो इनहिबिटर बाइंड है तो हमें पता है कि हमें कहां पर डॉकिंग करानी है, क्योंकि जहां पे इनहिबिटर है उसी साइड में हमें डॉकिंग करानी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नीचे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाली होती है, ठीक है। तो उसमें अभी ज्यादा ना जाके मैं दिखाता हूँ डाउनलोड कहाँ से करते हो। यहाँ से बगल में डाउनलोड फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीबी फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी देखिए डाउनलोड हो गया, ठीक है, डाउनलोड हो गया, ठीक है। 2VG7, ठीक है। ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोड थी इसलिए नंबर 1 इसको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इस प्रोटीन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा और हमें समझ में आएगा, ठीक है। मैं यूज करता हूं, ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पाइमोल का बेस जो मेन फ्रंट है वो आपका खुल गया, ठीक है। किसी को जरूरत हो मॉलिक्यूल डिजिटलाइज क्यों करना पड़ता है? क्या? हाँ बताइए। मॉलिक्यूल को डिजिटलाइज क्यों करना पड़ेगा? विजुलाइज, डिजिटलाइज नहीं, डिजिटल नहीं मैं बोल रहा हूँ, विजुलाइज, ठीक है सर। विजुलाइज मतलब देखना, मतलब वो कैसा दिख रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब जानने के लिए, ठीक है।
तो विजुलाइज करते हैं। देखिए मैं फाइल्स में जा रहा हूँ, ओपन, ठीक है, एंड डाउनलोड में जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल मैंने अभी ये डाउनलोड किया उसे मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिबन मॉडल्स, इसको रिबन मॉडल बोलते हैं, ठीक है, ये मैं दिखाई पड़ रहा, ठीक है। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चीज दिखाई, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये आपका ड्रग है, इनविटर्स है, जो कि वहां पे बता रहा था कि इसके अंदर बाइंड है, नॉन न्यूक्लियोसाइड जो है इनविटर्स है, ठीक है, ये बाइंड है, ठीक है। आप इसको डिस्प्ले को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने के लिए, ठीक है। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हो, लेकिन अभी देखिए क्या करते हैं, सिंस हम डॉकिंग कर रहे हैं तो हमने इस रिसेप्टर को डाउनलोड किया, ठीक है। अभी कुछ इसी में प्रिपरेशन हमें करनी है, ठीक है। तो क्या प्रिपरेशन करनी है, तो इसके सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाते हैं और सीक्वेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है, ए मतलब ए चेन, मतलब इसमें जितनी भी चेन होंगी उसमें सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं कई सारी चेन है प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमको एक ही चेन रखना और चेन को हमें यहाँ से हटाना है। तो अगर हम पीछे जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, धीरे अभी पहला चेन चल रहा, तो अब देखिए ये यहाँ पे बी चेन स्टार्ट हो गया, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ, फिर पीछे जाते हैं, ठीक है। ये सारा हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसमें चेन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, चेन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स। हेलो, यस प्लीज सर, इसमें चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, चेन बता रहे हैं आप। नहीं, आपको मैडम बताइए, समझ में क्या नहीं आ रहा है, फिर से बताइए प्लीज। हेलो, सर वो पूछ रहे हैं कि चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या? नहीं, चेन नहीं। देखिए, आप जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें केवल सीक्वेंस होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा, जिसमें क्या नाम है आपका, ये अल्फा हेलिक्स, बीटा टर्न्स, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर आप लोग टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी बनता है। तो ये जो अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद में जब दो आपके पेप्टाइड आपस में मिलके, या दो अलग अलग पेप्टाइड जो हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है, आपस में मिलके एक फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये उसमें चेन ये अलग अलग हो जाते हैं, मतलब जैसे आपने क्या नाम, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें कई सारे उसके होते हैं, चेन होते हैं ना। हाँ, बहुत सारे हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उसमें वो मल्टी पेप्टाइड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब डॉकिंग करते हैं तो हम उसमें से केवल एक ही चेन लेते हैं, हम सारी चेन नहीं लेते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि एक तो हमें जरूरत नहीं होती है, नंबर एक, दूसरी कंप्यूटेशनल पावर इतनी अभी हमारी है नहीं कि हम सारी चेन को लेके सिमुलेशन करा पाए, और ना ही इतने कॉम्प्लेक्स हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर डिजाइन हुए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये NNI जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक ड्रग है, इनविटर है, बाइंड है, ठीक है। ये हमारे बड़े इंटरेस्ट का है, क्योंकि हमें यहीं पर ही अपना कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड कराना होगा, या इसी को अगेन हम दोबारा बाइंड करा के देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे रेड में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे कि ना, ये आपके जो रेड या पिंक कलर में दिखाई हुई वाटर मॉलिक्यूल, इन्हें भी यहाँ से हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। आप कुछ नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और पीछे तक के लिए हमें सारे हटाना है, शिफ्ट करके दबाएंगे तो ये जो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यू राइट क्लिक इट एंड रिमूव इट, ठीक है। ये आपका रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बी चेन को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले बी चेन कहाँ से शुरुआत है वहां जाते हैं, यहाँ से शुरुआत है, देखिए यहाँ से शुरुआत है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर लास्ट में
हाँ, लास्ट में यहाँ पर आते हैं और शिफ्ट करके क्लिक करते हैं तो सारा ये सेलेक्ट हो गया। और नीचे सिलेक्शन भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर राइट में क्लिक कर रहा हूँ एंड रिमूव इट, ठीक है, एंड क्लीन, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ए चेन विद बाइंड इनविटर्स, ठीक है, ये हमें मिल गया। ये हमारे काम का है जो कि हमारे लिए आगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम इसी का ही यूज करेंगे, ठीक है, राइट। तो मैं सेव कर देता हूं आप इसको, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, ये मेथड है इसको सेव करने की, ठीक है, एंड सेव इट, ठीक है, एंड इसको में एक फोल्डर है, क्या नाम है ये, डॉकिंग्स प्रैक्टिकल्स, जिसमें कुछ चीज रखे। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे रहा हूँ, मैं जस्ट ए नाम दे रहा हूँ, जैसे आपको समझ आए कि हमने इसी को किया। और यहाँ पे नीचे करके पीडीबी फॉर्मेट में हम इसको सेव करते हैं, पीडीबी फॉर्मेट, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट, एंड सेव इट, ठीक, राइट। सर प्लीज, यस सर, जैसे अभी आपने एक चेन को रिमूव किया, अगर उसके भी कुछ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज इन्वॉल्व होते हैं इनहिबिटर साइट में, हाँ, तो इन दैट केस हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? अच्छा, नहीं मैंने जो रिमूव किया है बेटा, वो पूरा के पूरा एक दूसरी चेन, हाँ, मतलब वो कर रखी, रिमूव करके। यूजुअली अभी तक मेरे साथ, मैंने अभी तक जो काम किया है, ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिसमें कि एक इनहिबिटर दो से बाइंड है, अभी तक नहीं केस आया। अगर ऐसा है तो हम रिमूव नहीं करेंगे फिर, ठीक है, तो हम उसको साथ ही लेके आगे हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर नहीं फिर वो रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आएंगे। ओके सर। हाँ, ठीक है। अभी मैंने तो क्या कर रखा है, मैंने प्रोटीन डेटा बैंक से, ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड HIV का मैंने डाउनलोड किया, इसके साथ इनविटर बाइंड है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शुरुआत में ये सब मॉलिक्यूलर डॉकिंग करने के लिए इनविटर बाइंड है, जिससे हमें पता चल गया कि एक्टिव साइट की लोकेशन कहाँ है, यानी कहाँ ड्रग बाइंड होना चाहिए, ये हमें पता चल गया। अभी इसकी लोकेशन भी कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और हमने सब क्लीन कर लिया, अनवांटेड चीजों को निकाल दी हमने यहाँ से, जो बी पे चेन था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमारे पास क्लीन प्रोटीन और उसके साथ में इनहिबिटर बाइंड है, ये हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब इसकी हम लोकेशन निकालते हैं, ठीक है, इसकी कहाँ लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वो सेलेक्ट हो गया, NNI यानी इनहिबिटर्स जो है ये सेलेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर आपका प्लगइन्स है, प्लगइन्स में हम लेगेसी में जाते हैं और गेट बॉक्स प्लगइन के अंदर, ठीक है, ये गेट बॉक्स फ्रॉम सिलेक्शन, गेट बॉक्स मतलब उसकी कोऑर्डिनेट, ठीक है, कहां से जो सिलेक्शन मॉलिक्यूल हमने किया है उसका चाहिए, मिलेगा, ढूंढ के निकालो, ठीक है। इसका मतलब है फाइंड आउट द मॉलिक्यूल विच इज सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड एंड डिस्प्ले द XYZ कोऑर्डिनेट एंड वॉल्यूम आल्सो, ठीक है। तो इसको हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट हुआ, ठीक है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल सेलेक्ट हुआ। इसके बॉक्स आप लोग देख रहे होंगे, तो ये बॉक्स के डायमेंशंस और ये मॉलिक्यूल का डायमेंशन विद इन द रिसेप्टर कहाँ है, ये हमें ऊपर देखेंगे। आप ऊपर देखिए कुछ आरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ली बाइंडिंग पॉकेट है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये उसके लिए है। लेकिन हम ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम जो ऑटोडॉक बीना यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑटोडॉक बीना, यहाँ पर देखिए ऑटोडॉक बीना है, इसके, ठीक है, इसके लिए इसने ये निकाला है, इसका जो है सेंटर x की वैल्यू, ठीक है, कितनी है 11, ठीक है, और y की वैल्यू 64 और z की वैल्यू 60.4, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेट है, 3D कोऑर्डिनेट है विद इन द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और बॉक्स की जो साइज है, जो बॉक्स देख रहे हैं, इसके क्या नाम है, x जो x y और z, इसकी जो लेंथ है आपकी, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में होती है, 16.3 x की, y की 17 और z की 18.6, ठीक है। तो ये इसका हम यूज करेंगे, ये वो लोकेशन है जहां पर रिसेप्टर में मॉलिक्यूल बाइंड है, डॉकिंग के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। आप कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा। और इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे आप बंद करोगे तो वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल को इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है।
तो मैं एक नई विंडो खोल रहा हूँ, अगेन मैं इसी मॉलिक्यूल को खोलूंगा, उसमें से निकालूंगा, ठीक है। जो भी इसमें इनहिबिटर बाइंड है उसको यहाँ से रिमूव करूंगा। मैंने ए नाम से सेव किया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। एंड मैंने खोला और मैं क्या चाहता हूँ कि इस भी मॉलिक्यूल को ऐसे रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया इस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो भी यहाँ से निकल जाता है। समटाइम्स ये राइट क्लिक नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम डिस्प्ले से चले जाते हैं, सीक्वेंस एंड पीछे जाके वी सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। राइट क्लिक एंड रिमूव, ठीक, राइट। तो अब ये देखेंगे कि इसमें से रिसेप्टर लिगेंड निकल गया और ये दिस इज ओनली द रिसेप्टर, ठीक है, जो कि रेडी है डॉकिंग के लिए, ठीक है। इसको सेव करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेव, ठीक है। इसको मैं AAA नाम दे देता हूं, ठीक है। और फॉर्मेट देखिए, नीचे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट आप लोग देख रहे होंगे, हम PDB फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो इसको मैं सेव कर देता हूं, ठीक। तो अभी हमारे पास क्या मिल गया, हमको ये रिसेप्टर मिल गया, ठीक है। और जो क्या नाम है ये लिगेंड, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका लिगेंड था, ठीक है, उसको ही हम यूज कर सकते हैं दोबारा यहाँ पे डॉकिंग कराने के लिए, ठीक है। और ये कराना भी जरूरी होता है जब भी हम डॉकिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम बाद में कोई और मॉलिक्यूल की डॉकिंग कराएंगे तो कंपेयर हम इसी से करेंगे, ठीक है। तो जैसे वेट लैब में हमेशा नेगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा रखना पड़ता है, पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि जो मॉलिक्यूल बाइंड था उसको हम रेफरेंस मॉलिक्यूल या पॉजिटिव कंट्रोल बोल सकते हैं, उसकी अगेन डॉकिंग करानी चाहिए, ठीक है, राइट। तो उसमें बंद कर देता हूं, ठीक है। ये यहाँ से हमारा ये काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब डॉकिंग कराने के लिए, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ फाइलें आपको बना के रखी हुई है, जिससे कि आप लोग को ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ये देखिए, एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर रखा है इंस्टाडॉक, जो कि मैंने आपको बताया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नीचे आप लोग देखेंगे ये थायोकार्बामेट मॉलिक्यूल से, ये वही मॉलिक्यूल है जो बाइंड था, उसका नाम ही ये थायोकार्बामेट है, ठीक है। ये वही मॉलिक्यूल इसके अंदर बाइंड था, मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ इसको, ठीक है। उसके बाद ये है सेम मॉलिक्यूल्स है, चाहो तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके वही AAA भी ले आता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब ये वही मॉलिक्यूल जो मैंने अभी प्रिपेयर किया, इसमें से मैंने लिगेंड को निकाला हुआ है, आपको पता है, ठीक है। और थायोकार्बामेट वही है जिसमें बाइंड था, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और मॉलिक्यूल कुर्कुमिन भी रख दिया, सबको पता है हल्दी में पाया जाता है कुर्कुमिन है, ठीक है। अब हम डॉकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो इंस्टाडॉक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है इंस्टाडॉक का, और आपको बता दूं इसके अंदर ऑटोडॉक बिना ही इंटीग्रेट है। तो एक तो तरीका देखिए क्या होता है कि हम जस्ट अगर स्टार्ट कर दें तो एवरीथिंग ही ऑटोमेट कर देता है। अब ये थोड़ी देर में देखेंगे, सब कुछ ऑटोमेट कर देगा ये। कुछ ना कुछ फाइल देखिए जनरेट हो रही है, ठीक है। पहले लिगेंड को बनाया, फिर इसको आगे इसको हम क्लिक कर देते हैं। अभी फर्स्ट लिगेंड को प्रिपेयर कर रहा है, फिर सेकंड को करेगा। अच्छा, प्रिपरेशन, लिगेंड प्रिपरेशन मतलब क्या हुआ, देखिए। लिगेंड प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं उसमें प्रॉपर्ली उसमें हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ना,
यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं या हम किसी फॉर्मेट से हमने डाउनलोड कर रखा है उसको, तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन हमें जोड़ना पड़ता है। तो या तो हम उसको इंडिविजुअली किसी और सॉफ्टवेयर से करें, जैसे ऑटोडॉक टूल्स होता है उसको थ्रू करें, या एक पायरेक्स सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू करें, ठीक है, वैसे हम कर सकते हैं। या अगर इंस्टाडॉक में करते हैं तो इंस्टाडॉक ही ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। तो बिगिनर के लिए ये बड़ा सुविधाजनक है, काफी कन्वीनियंट है यह सॉफ्टवेयर यूज करना। कभी कभी हो सकता है ये हैंग की प्रॉब्लम आती हो, बट कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में करेगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, करता है। अराउंड 50%। ओके, तो देखो इसमें जब ये आपका फिनिश हो गया डॉकिंग, थैंक यू फॉर यूजिंग द इंस्टाडॉक, ठीक है, ये आप आगे से पता चल रहा है कि हमारी डॉकिंग मतलब कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो इसको इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा पहले हमने यहाँ पे इंस्टाडॉक था, 2 मॉलिक्यूल्स थे जिनके पीडीबी फॉर्मेट में दोनों मॉलिक्यूल्स रखे हुए थे, ये दोनों लिगेंड है, छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में हमने ट्रिपल ए रखा था, ठीक है, ये क्या था, रिसेप्टर मॉलिक्यूल था, ठीक है। जब इसने प्रोसेस करी तो सबसे पहले इनके PBQT फॉर्मेट बनाए इसने, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये हाइड्रोजन ऐड करता है और कुछ चार्ज इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे इंटरेक्शन वो प्रॉपर्ली हो पाए और उसका रिजल्ट सही आ पाए। अभी एक फिर उसके बाद रिजल्ट फोल्डर देता है, आप रिजल्ट फोल्डर में अंदर जाएंगे, ठीक है, तो एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, उसके बाद में आउट फाइल है, ठीक है। ये आउट फाइल को हम एनालाइज करेंगे लेकिन सबसे पहले देखते हैं एफिनिटी, ये जो रिजल्ट आया है इसमें क्या रिजल्ट आया हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, एंड दोनों मॉलिक्यूल की जो बेस्ट बाइंडिंग एनर्जी, देखिए आफ्टर डॉकिंग हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट हमारे क्या है, तो उसका कोई एक आपका डेटा निकल के आएगा। तो डेटा क्या निकल के आता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आप देखेंगे ये कुर्कुमिन की -7 है उस रिसेप्टर के साथ में, और थायोकार्बामेट जो कि ऑलरेडी उसमें बाइंड था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रूवन था, ठीक है, उसकी हम -3, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आता है, एक तो देखो माइनस होने की वजह से एक बात ये समझ में आती है कि जो लिगेंड एंड प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है आपस में, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, ठीक है, और ज्यादा माइनस में है, इसका मतलब क्या है कि बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, जिसकी माइनस में है। तो अगर हम कुर्कुमिन की बात करें तो कुर्कुमिन की बाइंडिंग एफिनिटी विद HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में ज्यादा है एज कंपेयर थायोकार्बामेट, ठीक है। तो इसका मतलब इट मे बी पॉसिबल है कि कुर्कुमिन मे बी बेटर इनहिबिटर एज कंपेयर थायोकार्बामेट। ये हमारा ये रिजल्ट ये बता रहा है, ठीक है, ये चीज बता रहे। बाकी कुछ और ये क्या नाम है एनर्जी के इसने डाटा दिए हैं। मेन तो हम इसको करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या नाम है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग फ्री एनर्जी बोलते हैं। जितनी माइनस में होगी उतनी ही बेटर मानी जाएगी, ठीक है। पीकेआई वैल्यू इसने निकाली है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में क्या होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की पीकेआई वैल्यूज, ठीक है। लिगेंड एफिकेसी, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कितनी है नॉन एच एटम के साथ में टूरेंजन। ये मेन ज्यादा हम इस पे नहीं फोकस करते हैं, हम इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें क्या निकल के आया कि हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के साथ में डॉकिंग कराई, ठीक है, और वर्चुअल स्क्रीनिंग इसी को ही बोलते हैं जिसमें बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, तो उसको वर्चुअल स्क्रीनिंग हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा डेटा एनालिसिस हुआ, ठीक है। अब इसका हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर ये
कुर्कुमिन आउट है और दूसरा है थायोकार्बोनेट आउट है। ये क्या है, इसको अगर हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मॉडल 1, मॉडल 2, इस तरह से 9 मॉडल को ट्राई इसने कर रखा है इंटरेक्शन करने के लिए। 9 मॉडल मतलब कन्फर्मर, एक मॉलिक्यूल से बहुत सारे कन्फर्मर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा कन्फर्मर बेटर तरीके से बाइंड करेगा, ठीक है, इसमें 9 मॉडल, ठीक है। 1 मॉडल ये है, 2 मॉडल ये, इसमें एक ही साथ में 9 कन्फर्मर एक ही मॉलिक्यूल्स के हैं। लास्ट में जाएंगे यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। सिमिलरली कुर्कुमिन के अंदर भी 9 मॉडल्स है। हालांकि हम इस मॉडल्स की नंबर को बाद में हम वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत में एक आइडियल होता है कि हम 9-10 मॉडल को ट्राई करें, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 9 मॉडल लास्ट में है, ठीक है। राइट, ये देखिए 9 मॉडल यहाँ पे आ रहा है, मॉडल 9, ठीक है, ओके, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर क्या है कि इन्होंने क्या कर रखे, जितने भी 9 मॉडल्स है कुर्कुमिन के और कैंथाई कार्बोनेट को उन्होंने अलग अलग कर रखा है इसके अंदर। तो सेम चीज है, बट ये स्प्लिट फाइल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स की स्प्लिट फाइल्स है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है बाद में कि भाई बेस्ट मॉलिक्यूल्स कौन सा, उससे हमें आगे काम करना, ठीक है, ओके। अब ये विजुलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा भी रिजल्ट आया है इसको कैसे विजुलाइज करते हैं। तो सेम फोल्डर में मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर AMDoc, अच्छा AMDoc भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, AMDoc, ठीक है। इसके अंदर खुद में ही ये डॉकिंग सॉफ्टवेयर भी है और इसके अंदर पाइमोल इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से आप पाइमोल को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि वो डिफिकल्ट होता है पाइमोल अलग से इंस्टॉल करने के लिए। तो ये AMDoc अगर आप कोई भी लिख के डालेंगे इंटरनेट में तो आपको वो मिल जाएगा, पूरा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पाइमोल खोलते हैं, इट इज फेमस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे आपके पब्लिकेशंस में इसी के आपको मिलते हैं, ठीक है। फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, एंड ओपन में हम देखते हैं हमारा कहाँ पे है, फाइल कहाँ पे हमारी है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के अंदर, और यहाँ पर ये है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना प्रोटीन खोलेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो खोलेंगे हम PBT QT फॉर्मेट का प्रोटीन खोलेंगे, जो कि इस सॉफ्टवेयर में ने हमें बना के दिया था, ठीक है, डॉकिंग के समय, ठीक है। ये हमने इसको खोल दिया। उसके बाद में जो आउट फाइल है उसे ओपन करेंगे, जो रिजल्ट से हमें आए हैं, ठीक है। तो हम रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट से हम ये कुर्कुमिन का खोलते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका बड़ा करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए बाइंड हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए 9 मॉडल है, मैं सारे मॉडल को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये 9 मॉडल्स जो हैं ये ऑटोमेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड इफ स्टॉप दिस वन, इसको एक एक करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें जो किस मॉडल को हम काम करेंगे, जो मॉडल क्या नाम है आपका एक्टिव साइट में होगा, उस पे हम उस मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो रिसेप्टर अभी खुला है, प्रोटीन है, ये क्या PBT QT फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, और दोनों अलग अलग है, हमने सॉफ्टवेयर में एक साथ खोल रखा है, जबकि वहां पे अलग अलग है। तो हम इसको कंबाइन ये भी बना सकते हैं, इसका फाइल बना सकते हैं और PDB फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल्स में हम जाते हैं, सेव एज, ठीक है, सेव एज, ठीक है। इसका क्या नाम दे दें, ठीक है, इसका नाम, ठीक है, कुछ BB करके कुछ भी हमने ऐसी नाम दे दिया फिलहाल, ठीक है। एंड PDB फॉर्मेट, ठीक है, ठीक है। तो ये PDB फॉर्मेट में ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अगर हम एक न्यू विंडो में जाते हैं एंड
उस जो हमने सेव अभी किया उसको खोल के देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको खोल के देखने की। हाँ। ये यस, ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्मेट में ही आ गया। ठीक है ना, इसका फर्दर एनालिसिस क्या, पहली बात तो है कि हम इसके फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को सीखना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड को वाइट भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जूम, और इसको बड़ा चाहिए तो जूम कर सकते हैं, जूम फोटो खींच सकते हैं। इसके थोड़ा सा सीखना पड़ता है पाईमोल को, कौन कौन से रेजियो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले मतलब हो जाती है। ठीक है, अब इसको फर्दर इसका एनालिसिस हम लिग प्लस एक प्रोग्राम्स होता है जो कि और स्पेसिफिक तरीके से इसका इंटरेक्शन डिस्प्ले करता है, उसको हम देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं, लिग प्लस को कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, एंड इसको बंद करने के बाद में जो हमारा वो था उसी फोल्डर में मैं जा रहा हूँ। करेक्ट। हेलो सुभाष सर। यस प्लीज। सर थोड़ा सा अब टाइम की तरफ भी देखें, मतलब देख सकते हैं। बस मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है मैडम? यस ठीक है सर। हाँ ठीक है, अब बस एक और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्या नाम है, ठीक है। हाँ, लिग प्लस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन आफ्टर डॉकिंग जो मिलता है उसको डिस्प्ले करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि हमारा इंटरेक्शन कैसे उस प्रोटीन के रेजिड्यू के साथ में कैसे हो रहा है। ठीक है, लिग प्लॉट प्लस इसको बोलते हैं। ठीक है, फाइल्स में जाते हैं, ओपन पीडीबी फाइल्स, ब्राउज। ठीक है, उसके बाद हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां हमारा वो है बीबी। ये इसने अपने आप लिगेंड को जो अटैच्ड है आफ्टर डॉकिंग, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया एंड रन इट। तो अब ये देखते हैं कि ये जो बीच में आप लोग देख रहे होंगे ये लिगेंड है, और ये किनारे किनारे आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के अमीनो एसिड है। देखिए वैलिन 179 ए चैन, ठीक है, ये इंटरेक्शन का ये सब इंटरेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, आइसोलेशन 382, ठीक है, इस नंबर पे है। ठीक है, ग्लाइसिन 99, ठीक है, ये जितने भी है इंटरेक्शन इसके साथ में बना रहे हैं। तो ये अब देखिए ये जो किनारे किनारे हैं इसके साथ में वंडरबॉल और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाएंगे। अच्छा, बाकी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन ये बन रहा है। ठीक है, वेलिन 381 इसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन पता चल रहा है कि किस अमीनो एसिड के साथ में ये जो है हमारा जो लिगेंड जो डॉक के बाद आया वो किसके साथ में इंटरेक्शन बना रहा है। तो इसको आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ठीक है मैडम कह रही टाइम हो रहा, तो इसलिए मैं अब चाहूंगा कि हालांकि बताने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारे उसमें देख रखा होगा, ये फिगर पब्लिकेशंस में देख रखा, तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है कि टाइम जो है कम पड़ रहा है तो अभी मैं फिनिश करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ओपन से क्वेश्चन पूछना है मुझे। Has anybody questions, please? रोहित कोई? हाँ प्लीज। हाँ सर, आपने जो ये बताया कि इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो इन मॉडल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? डिफरेंट मॉडल ना? अच्छा, ये जो लिगेंड आया ना, ठीक है ना? तो अच्छा ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट क्या है कि
जैसे ऐसा होता है कि ये कंप्यूटर सिमुलेशंस है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट मॉडल ही बेटर हो, बेस्ट हो, ठीक है। तो इसलिए एक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में फीड है कि 9 मॉडल वो ट्राई करेगा। और कन्फर्मर आप समझते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल के कई सारे कन्फर्मर होते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, तो नेचर में तो ये कन्फर्मर अपने आप डेवलप्स होते हैं, क्या नाम है, पता होता है कि सही कन्फर्मर कौन है, बट कंप्यूटर में उन कन्फर्मर को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर सिमुलेट करने की कोशिश करता है कि जितने भी पॉसिबल कन्फर्मर है वो ट्राई करे, और ट्राई करके उसकी बेस्ट फिटिंग जो है लिगेंड प्रोटीन के फाइंड आउट करें, ठीक है। तो बेस्ट फिटिंग क्या होगी, ठीक है, अब टाइम नहीं है कहते हैं तो नहीं इसको आगे बता पाऊँ, बट बेस्ट फिटिंग वही होगी जो कि एक्टिव साइड में बाइंड होगी, जिसके और जो सबसे बेस्ट इंटरेक्शन दिखा रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या नाम है इंटरेक्शन, ये सब दिखा रहा होगा, वो सबसे बेस्ट कन्फर्मर माना जाएगा। तो उसी को लेके फिर आगे सिमुलेशन भी करेंगे, जो आगे अगर डीएफटी करनी है हमें, डीएफटी भी उसी का करेंगे, क्या नाम है, टू फाइनलाइज द आवर रिसर्च वर्क। ओके सर, थैंक यू। प्लीज। सर ऑटोडॉक बिना जो होता है उससे सर कैसे यूज करेंगे? ऑटोडॉक बिना? यस सर। अच्छा, तो रोहित ऑटोडॉक बिना जो है ना, देखिए ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलडॉक है ये ऑटोडॉक बिना पे ही बना हुआ है। अच्छा, ऑटोडॉक बिना का आपको नेचुरली यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो कमांड लाइन के थ्रू होता है, ठीक है। शुरू में हम भी उससे करते थे, ठीक है। और पहली प्रॉब्लम से ऑटोडॉक बिना की कमांड लाइन्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी है कि ऑटोडॉक बिना में डायरेक्टली जो है वर्चुअल स्क्रीनिंग नहीं होती, मतलब एक ही मॉलिक्यूल की डॉकिंग एक साथ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में 100 मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल्स है, लाखों मॉलिक्यूल्स है, तो ऑटोडॉक बिना में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो दूसरे लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं, जैसे पायरेक्स है आपका, ठीक है, उसी पे डेवलप है, ठीक है। उसका जो प्रोफेशनल वर्जन प्रॉब्ली $500 का मिलता है, ठीक है। यस हाँ उस हाँ ठीक है। अभी इंस्टाडॉक की मैंने बात करी, ठीक है, ये फ्री है, अच्छा है, क्या नाम है, कभी कोई दिक्कत आती है इंस्टॉल करने में हो जाता है। इजी डॉकिंग्स है आपका, क्या नाम है ये। और ऑटोडॉक बिना पे मैंने पढ़ रखा 100 ऑफ सॉफ्टवेयर, मोर देन 100 सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं लोगों ने। अब कुछ सॉफ्टवेयर आपके लाइनक्स में चलते हैं, कुछ विंडो में, जैसे भी मैंने विंडो में चला के दिखाया तो विंडो में चलते हैं। बाकी जिसके पास पैसे हैं वो आपका डिस्कवरी स्टूडियो पे जा सकता है, बी लाइफ साइंस पे जा सकता है, सोरेंजर सॉफ्टवेयर पे जा सकता है, डिस्कवरी स्टूडियो पे जा सकता है। और सर ऑटोडॉक गोल्ड कोई होता है ना, उससे कैसे करते हैं, कुछ आइडिया? वो गोल्ड होता है, ऑटोडॉक गोल्ड नहीं होता, गोल्ड होता है जो सोरेंजर गोल्ड। हाँ, जो सोरेंजर है ना, सोरेंजर है तो वो इसके अंदर होता है, क्या नाम, वो उसका अलग से मॉड्यूल मिलता है। और सोरेंजर सॉफ्टवेयर कभी आप खरीदेंगे उसके अंदर ये मतलब होता है अलग से, वैसे अलग से है, सॉरी, ये गोल्ड जो है अलग से है सॉफ्टवेयर का। ओके सर। और प्रोफेशनल है, मतलब ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहीं से अगर आपको क्रैक मिल भी जाता है तो आप पब्लिश नहीं कर सकते है ना। ओके सर। तो इसीलिए इससे बेटर है कि मतलब अगर पैसे वैसे नहीं है, ठीक है, और ज्यादातर पैसे नहीं होते आजकल, बड़े बड़े लैब में भी नहीं होते, ठीक है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से काम चलाए, क्योंकि पब्लिकेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है ये। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नाइस प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू रोहित, हाँ नाइस प्रेजेंटेशन रोहित। थैंक यू। बाद में बात करेंगे रोहित। हाँ ठीक है। और कोई पूछना चाहता है कुछ? Anybody want to ask? गुड इवनिंग सर। हाँ प्लीज। सर मेरे को ये पूछना था, आप मतलब इससे डॉकिंग से रिलेटेड कोई वर्कशॉप भी मतलब प्रोवाइड करते हो, या फिर आप कोई वर्कशॉप लेना चाहते हो आगे? आप डॉक्टर हमारे जो गोपाल जी हैं इनसे अगर संपर्क में रहेंगे तो आप जो चाहते हैं वो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मतलब हो जाएगी, ठीक मिल जाएगी। आपको कुछ अलग से सीखना चाहते हैं इस चीज को ना? यस सर। हाँ, तो उसकी सर्विस आपको मिल जाएगी, क्या नाम है, ठीक है। देखिए जो वर्कशॉप होता है, जैसे मैंने अब 1 घंटा से 1.25 घंटा टाइम होने जा रहा है, आपने देखा, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाए, मुझे पता है, कोई विशेष नहीं सीख पाया, ठीक। मैंने कोशिश करी है कि थ्योरी ना ज्यादा पढ़ा के प्रैक्टिकल में नहीं बताने की कोशिश करी है, व्हाट इज रियलिटी बताने की
उसके फिर भी इतना आसान नहीं है। आपको जब तक कई बार नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर आप लैपटॉप में करोगे, कभी इसकी प्रॉब्लम आएगी, कभी डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कभी इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल में कोई दिक्कत आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सिमिलर टू वेटलैंड। तो इसके लिए इसके लिए ये है कि आपको एक मेंटर जरूर चाहिए कि जो इस फील्ड में मतलब काम कर रहा हो, ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए ना। Yes, sir. तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कोर्स सर्टिफिकेट, ये वेबिनार सर्टिफिकेट वेबिनार है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये सर्टिफिकेट वेबिनार है? क्या चीज? ये वेबिनार सर्टिफिकेट है, मतलब सर्टिफिकेट कुछ मिलेगा? हाँ, आप डॉक्टर गोपाल जी से कांटेक्ट करें, ठीक है। शोएब जी, सर, हाँ, शोएब जी, सर्टिफिकेशन इसका अगर होगा भी ना तो दैट विल बी कमिंग अराउंड आफ्टर 10 to 15 days, and for that you have to fill this feedback form. yes. I have completed for filling. Okay, that's good. So any other question from the participants? सर गुड इवनिंग सर। सर हर्षित साइड। सर इन फ्यूचर अगर कोई भी मेरे को क्वेरी हुई और आपसे कनेक्ट होना हो सर, कैसे कनेक्ट होगा सर, ताकि मैं अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकूं? आप ईमेल के थ्रू हो सकते हैं, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। सर प्लीज मेंशन द मेल इन चैट बॉक्स। ओके, मैं मेंशन कर देता हूँ आपको। scjeni@yahoo.co.in है, ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ उसे। मैंने लिख दिया, चैट बॉक्स में लिख दिया। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? Okay, so I think that we should now end up this session. So sir, thank you so much. And actually this session was again, since I'm also just looking for some few things to collaborate or to look forward in my research to expand the wings for the research also. Definitely. So I'm interested in some of the topic. I'm also using this PyMol, ResMol. Yes. Those things I'm also doing for the visualization and all that, AlphaFlow, all those things. Yes. So overall, this topic was very interesting for me, and I hope our participants have also benefited and they have enjoyed. As you said कि ये पूरा जो topic है ना, this topic cannot be covered in one day or 1 hour. Basically, it's not the thing to learn in 1 hour, but what we could or what our participant could feel that how much wider this topic is. And once you are aware of these things, that will be done. क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ ये डॉकिंग के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नए लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज करना है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, किस तरह से डेटा का रिट्रीवल कर सकते हैं, किस तरह से एक्चुअल में डॉकिंग हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई लिगेंड प्रोटीन इंटरेक्शन. So all these things, this was really nice to hear for me, and again, as I said, our participant would have loved to listen your talk. Anyone who wish to share their oral feedback? Okay. So what I feel that most of you have filled this Google feedback form. Gopalji sir, he will be looking into it, and regarding certification and all those things. Actually, this complete series, if what we are actually looking with this series, this is not basically a certification series. This is for your own knowledge and what you are learning and what you can get from the experts. That is very important, rather than focusing just on the certificate, that if we are getting any certificate for 1 hour webinar, if we are getting any certificate for this, because listen, अगर आप इसका certificate आपको मिल भी जाता है ना, तो आप उसका use कैसे करने वाले हो? Right. Point is that we just getting the webinar certificate, how it is going to help you. It is not actually practically भी you cannot do, क्योंकि क्या है ना कि ये एक हमारी जनरल टेंडेंसी है, हमें
हम लेक्चर सुनेंगे, सर ने इतना हमें बताया, बट ऑलमोस्ट इस समय में 30 लोग इस मीटिंग में मौजूद है सर, पर उनमें से कितने लोग जा करके इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, या जो भी आपने बताया पिछले 1-1.25 घंटे में, कितने लोग उनको उनमें से 50%, 40% शायद 2 घंटे तक याद रखेंगे, और सुबह उठे इतना याद रहेगा कि कुछ था। यस कुछ टूल्स थे जो अगर किसी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे तो मे बी कि टूल्स के बारे में पता चला होगा, या थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज याद रहेगा, बट उन चीजों को जब तक हम खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप ये जो इस पूरी सीरीज का पर्पस है ना, वो पर्पस ये नहीं है कि जस्ट वेबिनार का 1 आवर वेबिनार का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस आर देयर, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप इसको अपनी नॉलेज गेन करने के लिए अगर करते हो तो दैट इज द पर्पस दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. This is not a paid promotion, or this is not anything which we are trying to promote. This is not the purpose of Gopalji sir. Yes. The purpose is that there are many individuals who are doing excellent research, excellent academics, and we don't have the reach, we don't have the access to learn from them. And this platform, sir is trying to bring all those experts in their own field, so that कि जो भी है वो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लोगों तक पहुंचे, उनको आइडिया भी हो कि जैसे अभी किसी ने आपसे पूछा कि सर मैं कांटेक्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। यस प्लीज। और इससे थोड़ी देर शायद हमारा मकसद ये 1-1.5 घंटे के पहले तक सुभाष सर को आप पार्टिसिपेंट्स की बात छोड़ दो, मेरा खुद का सर के साथ में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है मेरे को सर के, बट राइट नाउ आई एम आल्सो फीलिंग कंफर्ट कि यस अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आई कैन कांटेक्ट गोपाल जी सर एंड सुभाष सर. So purpose of this complete series is just bring those experts, let the people know that you are not alone. There are many experts who can help you if you are trying to look for research. You are trying to do something in you are MSc pass out, BSc pass out, BTech, MTech, biotechnology, bioinformatics, computational biology, whatever field you are belonging. The purpose of this complete series is to make you sure that you are not alone. There are multiple scientists, academicians who are there to help you. But again and again, in every series, sir, actually we face such kind of question: are we going to get the webinar certificate? So this is my request to participant also, that please try to take as much as advantage that you can take from the expert lecture. And in actual, there is no use of getting webinar certificate of 1 hour or 2 hours, because ultimately you are not going to use it practically. So I hope that probably sir, you may be agreeing with me, and hope we will be having some more lectures. And as sir is saying that he has also mentioned many times that this time limit is restricting. There is a lot to learn in this field, molecular toxin. So sir, we are expecting to have few more lectures with you in this series only. So thank you everyone, and thank you sir for devoting your time for us for this series and making this lecture so beautifully explained all the things to the participants, to us. Thank you so much. Thank you everyone. Sir, I'll be taking leave from you and to all the participants. And thank you so much sir. That's it from my side. Thank you so much sir. Yeah. Welcome. Yeah, thank you madam. Thank you and best of luck all the participants.